Hi everyone, welcome to Mentorfy, or as we like to call it, mentoring by the millennials. And that's why we started this because there's always going to be somebody who's walked the paths of the place you want to reach. And what if that person can come live and tell us their journey or even the mistakes that they made, and it can help you to your path to success. I think, that will be Mentorfy's biggest success story when you come back and tell us, hey, I watched your webinar and I actually could, grow from that and reach my stage of success that I want. So thank you everybody for joining. And all doctors today, it's always been a noble profession, but you are the backbone or the strength of not just the country, but the world today. And to kickstart your doctor journey, I have the perfect mentor for you, Anuj Doshi. He got an amazing score of 700 on 720 in his NEET exams in just this September 2020. And he AIR 98, a state ranker second. So I think he knows the journey that you all are going through because he's a COVID ranker, I can say. And he's been a ranker throughout. So in 10th standard, also in his ICSE, he topped his exams. He was AIR 5. Then in 12th standard, he got a 90%. He's currently studying at the SETS GS Medical College and KM Hospital and aspires to become a neurosurgeon one day. So I think you have got the best of the lot. And Anuj, we are really lucky to have you here today. Thank you so much for coming with us. Thank you for inviting me over, and it's great to see everyone over here. I think I'm going to try my best to share whatever I know with you guys. I've been looking forward to this seminar, and I hope it's going to be fun. And we'll try to keep it as interactive as possible. I'm sure everybody will have a great time and a good learning, definitely. So I think we'll go that way. I'm sure you know what NEET students want to know and all that. So you can share your thoughts about how the agenda points you had written down, and then many questions have come from all our mentees. So I'll be asking them, and if still people have any doubts, you all can always write in the chat box and we'll be taking up those questions in the end. All right. So should I get started now? Sure. Yeah. The floor is yours. Okay. So I think this is all, this is stuff that you all already know. Ki NEET 2021 has been announced on 1st of August. And again, there's that HSC boards ka controversy and there are points being raised ki cancel karo, postpone karo. So it's a lot of confusion at this stage for you guys. तो तुम लोग के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे कि नीट शेड्यूल पे होने वाला है या नहीं, बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं या नहीं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं मैटर में, व्हाट शुड वी प्रिपेयर फॉर, हाउ मच टाइम डू वी हैव, हाउ आर वी सपोज टू मैनेज, व्हाट आर वी सपोज टू डू. So these are the particular questions going on in our mind, and I'm going to try my best to clear them. So this is basically the objective that I've come forward with कि मैं तुम लोगों को कैसे help कर सकता हूँ. कि basically पहले तो मैं शायद से जो confusion जितना हो सकता है अपनी तरफ से clear करने का try करूँगा. And I'll also tell you about how you can balance the boards at the same time, how to prevent yourself from burning out. Come on, elongate हुआ है तुम्हारा भी काफी हद तक, वो mental fatigue एक stage पे आ जाता है. We need to deal with that. How necessary are papers और उसमें खुद को time कैसे करोगे तुम. तो लास्ट 3 महीने है अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, लास्ट 1 month में क्या करना चाहिए, और कैसे the last day, the D day, I think that is the most important day. How you think on that particular day, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो how to condition yourself for that. Okay. So we start with dealing with all the confusion, all the rumors about NEET being postponed, the HSC exams being cancelled and everything. So what if they decided all of a sudden, तुम लोग कैसे करने वाले हो चीजें. तो पहले तो मैं जैसे नीचे लिखा, I want all of you to remember कि whatever happens, you have to make sure कि तुम्हें मालूम है कि सब जो भी होगा हम देख लेंगे, we are going to be fine. That is something that you have to keep in your mind, क्योंकि पैनिक करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे. और secondly, with regards to NEET being postponed, unless there is a notice by the government, तुम्हें वो डायरेक्शन में सोचना ही नहीं है.
खाली तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है। HSC बोर्ड्स ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ उसके लिए अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं, वो कैंसिल हो या ना हो। तुम अगर नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो तुम शायद से एक दिन जाके रात भर में प्रिपेयर कर सकते हो, या तो देर आर अदर बुक्स ऑल्सो सच एज 21 सेट्स विच यू कैन डू, और इजीली लाइक तुम्हें टॉप नहीं मारना है HSC में तो तुम आराम से क्लियर कर पाओगे वो। दैट्स नॉट रियली बिग डील, तो उसके बारे में ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड पॉइंट इम्पोर्टेंटली कि वी हैव टू स्टडी अ लॉट बीइंग नीट स्टूडेंट्स। थ्रू आउट 2 साल तुम लोग ने काफी चीजें सैक्रिफाइस किया है। You've been working hard studying stuff that's totally new to you, so it's but natural that you're fed up of doing all of that। इतना मेहनत और इतना एक्सटेंशन हो रहा है, ये सब कंफ्यूजन है, तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो बर्नआउट्स आर नॉट अ बिग थिंग, मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑन द होल। तुम अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते हो, आई कांट इवन मीट माई फ्रेंड्स, मैं घर रह के बोर हो रहा हूँ। यार ये भी थॉट्स आते रहते हैं, बट इट्स व्हाट इज नॉर्मल, इट इज कॉमन फॉर एवरीवन। नीट में टाइम पे हो या ना हो ये सब होने ही वाला है। लास्ट 3 महीने में जब रहता है तब तुम्हें लगता ही है कि कैसे करना है, मैं बोर हो रहा हूँ पढ़ाई से, हाउ डू आई गेट बैक माई मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम की बात अगर हम करते हैं तो दैट इज बेसिकली कि तुम कितना फोकस कर पा रहे हो, how you really have the topics in hand। अभी how to get it back, it's just to start working, there is no other alternative to that। क्योंकि तुम जितना टाइम सोचने में बिगाड़ोगे उतना तुम्हारा स्टडीज में से कट डाउन होने वाला है, उतना तुम्हें कम आने वाला है और उतना फ्रस्ट्रेट होगे। तो बेसिकली तुम्हें बस स्टार्ट करना है, मोमेंटम और सब कुछ सोचना ही नहीं है, जस्ट स्टार्ट। एंड और थॉट्स आते हैं कि नीट के बाद मैं क्या करूँगा, ये भी काफी आते रहते हैं। ठीक है, नहीं सोचना है, वो भी आते रहते हैं, बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। एंड ब्रेक्स, कैसे ब्रेक्स कैसे लेने हैं, वी ऑल बीन वेटिंग फॉर दिस। तो ब्रेक्स का बेसिकली फंडा क्या होता है कि इन ऑर्डर टू रियली रिफ्रेश योर सेल्फ ना, तुम्हें जो ब्रेक्स लेने, दैट इज एक्चुअली डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, डूइंग समथिंग दैट्स away from your academics but which is actually an integral part of you। जैसे some of you might be into fitness, you can go out and play, or you can't really go out, covid है, but घर पे तुम वर्कआउट कर सकते हो जो करना है। या तो तुम्हें अगर पेपर्स पढ़ने का शौक है, इन द सेंस you want to read more about आगे का stuff about medicine further, that's fine। Whatever you want to do, but basically social media or games and everything is something that you should avoid at this stage, because that on the whole is quite addictive और जो तुम्हारा studies hamper कर सकता है। और तुम और musical instruments play कर सकते हो, whatever you want, just something that is away from your studies। Okay, the big thing, last 3 months, लोग तुम्हें बोलने वाले पेपर्स आर द हॉट थिंग नाउ, जिसको पूछोगे वो वही बोले आप पेपर्स करो, इसके आकाश के करो, एलन के करो, NTA के करो। इज इट रियली वर्थ, आर पेपर्स वर्थ, पास पेपर्स करो, ये क्वेश्चन हम लोग काफी बार पूछते हैं। तो एक इसमें सब्जेक्टिव आंसर है, इन अ वे यस एंड इन अ वे नो। नाउ टॉकिंग ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, प्रैक्टिकली ये पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ बुक्स में ऑलरेडी पूछ चुके होते हैं। तो तुम जब पास पेपर सॉल्व करो तब तुम इफेक्टिवली पहले देखे हुए क्वेश्चंस ही कर रहे हो, जो करके कोई मतलब नहीं है। तो पास पेपर्स तो पक्का करने ही नहीं है। जो पेपर्स तुम्हें करने हैं उसमें NTA इज नॉट समथिंग दैट यू डू इन ऑर्डर टू चेक योरसेल्फ। तुम वो बस ऐसे ही बस कंसेप्ट ग्रास्प करने के लिए कर रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग यू असेस योरसेल्फ विद। बाकी तुम्हें जो पेपर्स करने हैं वो तुम्हारे क्लासेस के रहेंगे। सपोज NCERT बुक में जो रहते हैं, मतलब जो NCERT रेलिवेंट बुक्स होते हैं, जैसे देयर आर बुक्स लाइक अरिहंत, तो उसमें काफ़ी NCERT रेलिवेंट पेपर्स होते हैं। तो तुम MCQs कर सकते हो ऑफ 90 क्वेश्चंस इन लाइक 45 मिनट्स मे बी और एन आवर और सो व्हाटएवर, और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेक श्योर दे आर ऑल पर्टेनिंग टू द NCERT, दोज आर द पेपर्स व्हिच आर एक्चुअली गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस। Now, how do I time myself? This is probably a big aspect when you learn how to write papers। The major thing about timing is कि
नीट ऑन द होल इज अ प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम इन द सेंस तुम्हें कितना टाइम मिलेगा पेपर के लिए, कभी लेट स्टार्ट होगा, कभी जल्दी कलेक्ट कर लेंगे, कभी कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. सो वाइल टाइमिंग योरसेल्फ, तुम्हें याद रखना है कि 2.5 आवर्स में तुम्हारा घर पे तो एटलीस्ट जब प्रैक्टिस करते हो तो मार्क करके खत्म हो जाना चाहिए. सो यू एटलीस्ट हैव दैट हाफ एन आवर का विंडो, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैज बीन सीन कि स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट टाइम or it may extend to half an hour. Now you don't want to be in a position कि तुम totally off guard रहो उसके लिए. Study plan with subject and how. So last 3 months में मैं pretty much कहूँ तो मैं तीनों subjects काफी अच्छे से manage करने तो पड़ते हैं ही, क्योंकि एग्जाम पास में आ रही है. You have to remember a lot of stuff. So still मैं जो suggestion दूंगा कि go with physics and organic chemistry maybe और physical chemistry for sure. तो ये 3 टॉपिक्स तुम जितना जल्दी रैप अप करोगे उतना तुम्हें बाकी टॉपिक्स के लिए टाइम मिलेगा. और सिंस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री एटलीस्ट डील विद द conceptual aspect of both the subjects and they involve very less of learning, you're going to remember it for a long while. और वो तुम्हें बाद में लास्ट 1 मंथ में इम्पोर्टेंस रियलाइज होगा कि किस तरह से जब तुम फिजिक्स को स्टार्ट में टाइम देते हो तब एंड में कितना बेनिफिट होता है. दैट एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू. और मार्क्स कम आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं कितना भी मेहनत करो वही है. ठीक है, ये फेज भी सबको आता ही है, बट विथ रिगार्ड्स टू दिस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मार्क्स. जस्ट तुम कहाँ पे गलत जा रहे हो वो करेक्ट करो, और बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू. वर्क ऑन द टॉपिक्स वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. 3 महीने है तुम्हारे पास, तुम काफी वर्क करने वाले वो 3 महीने में. ग्रेजुअली तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव होने ही वाला है, so you don't need to worry about that too. Marks again, मैं लास्ट चीज इसमें जो ऐड कर सकता हूँ वो है कि तुम्हारे जो पास पेपर्स है वो भी देख लिया करो. दैट्स ऑल. और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा वो, उसमें इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन नहीं है. लास्ट 1 मंथ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर जर्नी. तुम्हें इसमें अच्छे से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तुम्हें रिगरसली टाइम टेबल फॉलो करना है. और कैसे करोगे वो, तो जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, अगेन द फर्स्ट 2 वीक्स तुम जितना फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, इनऑर्गेनिक नहीं सॉरी फिजिकल और ऑर्गेनिक उतना करो. बट एट द सेम टाइम रिमेंबर द लास्ट 1 मंथ हैज टू बी नियरली 60% बायोलॉजी, क्योंकि वो थियोरेटिकल है एंड यू नीड टू रिमेंबर स्टफ. वो जल्दी भूल जाओगे तुम, तो तुम जितना स्ट्रांगली करोगे लास्ट 1 मंथ उतना बेटर रहेगा. और लास्ट 2 वीक्स मैं जैसा किया था, मैंने मोस्टली खाली बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक किया था. और यू नीड टू नो योरसेल्फ कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे तुम्हें डिवाइड करना है टाइम. और फिनिश ऑफ योर वीकर पॉइंट्स फर्स्ट. दैट इज अ बिग थिंग, अ बिग थिंग. ओके, द लास्ट डे पे शाम को 7 बजे एग्जाम के जो एक दिन पहले होगा रुक जाना, क्योंकि जो तुम 2 साल पढ़े हो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 10 आवर्स. और प्लस तुम्हें पैनिक अटैक भी होगा, ये ऐसा लगा ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है. तो लास्ट डे पे बस अवॉइड कर दो. 7 o'clock के बाद डेफिनेटली, तब तक जितना मेहनत होता है कर लो. और जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है वो नोट करके रखो, उसी पे तुम्हें वर्क करना है लास्ट डे पे. और द फाइनल डे, सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है सुबह को एग्जाम के लिए जाने से पहले. और इवन व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम, तुम्हें इतना दिमाग में रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, टुडे इज माय डे एंड यू हैव टू वर्क. यू हैव टू नो दैट इट इज योर डे, और तुम्हें जो करना है तुम पेपर में करके ही रहोगे. और देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. यू प्रिपेयर्ड वेल. That's what you have to keep in your mind, because if the paper is tough, it's tough for everyone, and if it's easy for everyone. All you have to do is not go wrong. छोड़ दिया क्वेश्चन चलता है, बस गलती नहीं करना है, और जो आता है वो गलत तो जाना ही नहीं चाहिए. That's all D-Day के लिए. That's like the main strategy to crack me. I think this is pretty much gist of what I had to say before you guys can actually start asking your questions now. Yeah, I think thank you अनुज. ऐसे लग रहा है एक दोस्त से ही बात कर रहे हैं. So I think वो comfort सबको आ गया है that they can ask you questions that they would just ask somebody who's senior to them. So I think
I'll jump straight to the questions जो सबने डाले थे, and then of course we'll also address the questions in the chat box if they're not already covered. So before I go ekdam subject specific, there was one question. Did you go for any tuitions? So books, I think you mentioned Arihant Vagra, but because people were joining beach mein, so when did you start your preparation? Did you go for any tuition? And which books did you refer? तो मैं माइंड सेटर्स करके क्लासेस में था 11th और 12th में. मैं बेसिकली जो बुक्स रेफर किया था दैट वाज डिफरेंट फॉर ईच सब्जेक्ट. So for physics, I had done over like 5 books: Universal Self-Scorer, Marvel, B.M. Sharma. हमारे असाइनमेंट्स किए थे और DC पांडे किया था. बट दैट्स नॉट रियली जो ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था कि NTA फिजिक्स कैसे सेट करने वाला है. पूरा बॉडी ही चेंज हो गया है जो पेपर सेट करता है. तो एज ऑफ नाउ तुम्हें फिजिक्स के लिए बेसिकली खाली NCERT का इन टेक्स्ट करना है, बुक बैग्स करने हैं, और तुम्हें चाहिए तो USS या तो मार्वल, दोनों में से एक कर लो. दैट इज लाइक द बेयर मिनिमम. फिर ज्यादा जितना तुम्हें अच्छा लगे उतना. फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी बुक, वो थियरी बेस्ड है, बस NCERT पढ़ते रहो, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी में से आते हैं इवेंचुअली, और उसमें कंसेप्ट कम होता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक MTG गाइड करके होता है. अगेन इन MTG गाइड विद रिगार्ड्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू माइट सी क्वेश्चंस जो तुम्हें समझ में ना आए, जो तुम्हें लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो उस पर भी स्ट्रेस मत करना. और बायोलॉजी के लिए सेम, देयर इज बुक कॉल्ड अरिहंत जो पूरा NCERT से क्वेश्चंस पूछते फिल्टर करके. इफ दैट्स नॉट इनफ, तुम डॉक्टर अली करके एक बुक है, उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो कोई भी चैप्टर के, क्योंकि दोज आर फ्रॉम NCERT. देन एज द चैप्टर प्रोग्रेसेस दे बिकम मोर एंड मोर एक्सक्लूसिव ऑफ द टॉपिक, और वो ज्यादा बाहर जाने लगते हैं, तो वो अवॉइड करो तो बेटर रहेगा. और वॉट एवर तीनों सब्जेक्ट के लिए NCERT तो पढ़ना ही है, और बाय डिफॉल्ट बुक पैक और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करना है. आई होप सब लोग लिख के ले रहे हैं. उसने बहुत सारे पब्लिकेशंस के नाम लिए हैं, बट आई थिंक समबडी मिस्ड आउट ऑन द क्लासेस. तो किसी ने पूछा व्हिच क्लासेस डिड यू गो टू? अच्छा, माइंड सेटर्स करके विले पार्ले. Okay. So Mumbaikas can take note, but otherwise there are many classes. Then the second question was, so एक AIR अपना दिन कैसे schedule करता है? So you know how to get a rank is another question, but what should be your daily schedule when you're studying? सो हम लोग का तो एक्चुअली कोरोना की वजह से काफी मैसअप हो गया था शेड्यूल, तो वो शायद से अभी एप्लीकेबल भी ना हो. बट स्टिल जैसे एंड लास्ट 1 मंथ, लास्ट 30 डेज में मैंने जो शेड्यूल किया था वो था कि मैं फिजिक्स थ्रू आउट द ईयर काफी मेहनत किया था, तो आई न्यू आई डिडंट नीड टू वर्क फॉर इट एज सच. तो आई जस्ट रिमूव्ड इट फ्रॉम माय शेड्यूल. मैं बस जो फॉर्मूले थे वो वीकली एक बार पढ़ लेता था. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सेम, बिकॉज न्यूमेरिकल बेस्ड था. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक में एक बार ट्राई करता था कि एटलीस्ट मेरा हाफ सिलेबस एवरी वीक हो जाए. और बायोलॉजी में वीकली वंस करने का ट्राई करता था सिलेबस, और इवन इनऑर्गेनिक के लिए वंस अ वीक द एंटायर सिलेबस. तो बेसिकली यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, वरना ये थोड़ा अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क लगता है. बट दैट्स हाउ इट इज. तो मतलब क्या टाइम फ्रेम होता है? व्हेन शुड यू आइडियली स्टार्ट स्टडिंग? मतलब यू बीन सेइंग 2 साल, बट इट्स लाइक bit dependent on a person himself कि उसे कौन सा टाइम जम रहा है. there might be people who are comfortable studying at night, तो उन्हें सुबह जल्दी उठ के करने का नहीं जमेगा, और वो बोल के कोई मतलब भी नहीं है. और थोड़े लोग हो गए जिन्हें सुबह जल्दी उठना पसंद है, जो मॉर्निंग्स को प्रोडक्टिव मानते हैं, तो इट्स ओके, वो भी सही है. बस उतना होना चाहिए कि तुम्हारा जो प्लानिंग है वो वीकली होना चाहिए, पूरा वीक को दिमाग में रख के होना चाहिए, और वो मिस आउट नहीं होना चाहिए. खुद का SWOT एनालिसिस करके ही everybody needs to plan out. Correct. Now diving into the subject specific, because मैंने क्वेश्चन से पढ़ा कि बहुत लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत क्वेश्चंस थे. So how to study, what to do, what not to do. इनऑर्गेनिक में तुम जहाँ पे नेमोनिक्स बना सकते हो वहां पे बनाओ, जहाँ पे डायग्राम्स बना सकते हो, या तो डायग्राम्स इन द सेंस कार्टून्स के फॉर्म में तुम याद रख सकते हो तो करो. बट उसमें तुम्हें याद रखना है, उसमें ऐसा कोई एस्केप
नहीं है, मतलब मैं भी काफी स्ट्रगल किया था उसमें, बट इट वाज ऑल अबाउट रीडिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। तो अगर तुम्हें उसमें प्रॉब्लम है तो एवरी तो जैसे तुम्हें लगता है जितना प्रॉब्लम उस हिसाब से पीरियोडिकली उसे करते रहो तो तुम्हें याद रहने लगेगा वो। ऐसा शॉर्ट शॉर्ट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। Yeah, some trick that you use जो वो लोग कर सकते हैं. But first, let's say दैट्स ऑल physics. नेमोनिक्स, नेमोनिक्स ही होता है पूरा, क्योंकि वो थियरी है सीधा प्लेन बुक में से तुम्हें याद रखना है वो। Okay, okay, हाँ. There is no shortcut, वो करना ही पड़ेगा. But what about physics? और हम फिजिक्स तो जितना अभी सपोज समवन वांट्स टू रियली स्ट्रेंथन देयर फिजिक्स एट दिस स्टेज, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट 1 मंथ उसी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दे, क्योंकि वो ऐसी चीजें जो भूल नहीं सकते हो तुम। उसमें एक तो तुम्हें जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझने चाहिए, गिव दैट टाइम। और तुम्हें फिर एक बार समझ जाए कंसेप्ट तो इमीडिएटली उस पर जितना सॉल्व कर सकते हो वो कर लो। आप सॉल्व करो इन द सेंस रीजनेबल अमाउंट, ऐसा नहीं कि पूरा दिन एक छोटे से कंसेप्ट पे डाल दिया, उस पे इजी इजी क्वेश्चंस किए, नहीं। आप थोड़ा खुद को चैलेंज करो सोचने के लिए। आप थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस करो जो एक्चुअली तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसका पॉइंट खाली ये है कि तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, उसे किस अलग अलग वे में अप्लाई कर सकते हैं, और और where you're lagging basically, or is there something right or wrong with your understanding in particular. So I think इसमें mnemonics था and इसमें more of practice. Once you get the formula, you have या to. प्रैक्टिस प्रैक्टिस अभी हम लोग, हाँ कह सकते हैं। या Because एक का question था tips and tricks to get 170 plus in physics. From Anuj, do you want to know? it's just what I said, just understand the concept, challenge yourself to think। जैसे क्वेश्चंस हो गए, अगर नीट उतना टफ ना भी होने वाला हो तो भी सॉल्व सच क्वेश्चंस यार, इंटरेस्टिंग होता है, एक चीज वो है। और दूसरा कि तुम एक्चुअली अगर वो कर पाओगे तो इजी क्वेश्चंस तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू टफ क्वेश्चन, बस तुम्हें अपने लेवल के हिसाब से जो तुम्हें थोड़ा फोर्स करने करे थिंक करने के लिए वो करो। यू डोंट हैव टू गो एंड डू एचसी वर्मा टाइप थिंग्स, वो अनरीजनेबल होगा। But true. So I think वो सबने नोट कर लिया होगा. And finally biology के लिए एक question था that tricks so that NCERT for biology can be easily memorized. वो सेम इनऑर्गेनिक जैसा ही है, वो भी प्लेनली बुक में से थियरी है। जैसे कोई तो चैप्टर था, अभी काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, इकोलॉजी का जो सेकंड या थर्ड चैप्टर था, तो उसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स थे। तो वो सब तुम्हें याद रखने ही है। वो ऐसे ट्रिक्स उसमें कम रहते हैं। तुम क्या कर सकते हो कि जो याद रखने की चीजें उन्हें असॉर्ट करके एक पेज पे लिख सकते हो। जैसे सपोज प्लांट के पर्टिकुलर एग्जांपल्स है तो सभी एग्जांपल्स एक साथ लिख लो, तो when you studying that you just find it easier कि यहाँ पे ये सब एग्जांपल्स यहाँ से ही पढ़ने हैं। और तुम वो माइंडसेट बना सकते हो कि कंसेप्ट और एग्जांपल साथ में नहीं आ रहे, अभी एग्जांपल्स ही है, तो ये मेमोराइज ही करना है। Great. So I think at least subject specific मैंने questions cover कर लिए. So before going to exam specific, एक दो questions थे for somebody was asking how to cover 11th along with 12th if you're starting from ground zero, or how ओके, important is 11th. इट्स 11th इज 50% ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव फॉर नीट, तो वो कवर तो करना ही है। बट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ कवरिंग 11th, तो Yeah. तुम पूरा 11th कवर करने की बात करो या स्ट्रेंथन करने की बात करो, या विच नीट आर यू टॉकिंग अबाउट, 21 या 22? काफी एम्बिगुइटी रहता है उसमें। इन पर्टिकुलर लेट्स स्टिक टू द रिस्कियर थिंग, 21 की बात कर रहे हो। Yeah. तो यू विल हैव टू कमिट अ लॉट एट दिस स्टेज इफ दैट्स द केस। तुम्हें दिन का 12-12 15-15 घंटा जितना दे सकते हो दे के पढ़ो। और I think 22. और नहीं इतना worst case scenario पे नहीं है हाँ, वही शायद. वही मैं सोच रहा था कि थोड़ा एम्बिग्यूअस है। Then एंड इफ इट्स 22. 22 तो अभी तुम, मैं वही बोला ना, जैसे पढ़ रहे हो तब जो नए कंसेप्ट क्लासेस में करा रहे हो तुम्हें, या तो तुम सीख रहे हो खुद से, तो मेक श्योर दैट यू डू दैट फर्स्ट। और तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर अप टू डेट रहो। बायोलॉजी में क्या है कि तुम भूल जाओगे चीजें, बस नए कंसेप्ट समझो, बाकी याद रखने की अभी ये स्टेज पे ज्यादा जरूरत नहीं। डोंट नेग्लेक्ट इट ईदर।
Okay. So 21 and 22 के लिए दोनों के लिए whoever is asking this, what strategy should I follow from now till NEET? 21 or 22? You can answer for both, I think. who जिसको भी वो relevant Okay, है. so 21 and 22. So 21 में you have to divide whatever time you have. That is um May, June, July. May तो अभी start हुआ है. Still we're like 10 days through almost. So next, Maybe the last so 3 months strategy they might be asking. या बेसिकली तो तुम्हें पहले तो फिजिक्स कवर करना है, केमिस्ट्री के साथ साथ डेफिनेटली. फिर 1 month is going to be a mixture of the 3 subjects, constantly revising them. And the last month has to focus more on the theoretical aspect rather than the conceptual part, because you have to remember, वो तुम्हारा short term memory में सब fit हो जाना चाहिए ताकि तुम एग्जाम में एक दिन जाके वो निकाल सकते हो सब डेटा जो भी हो. और with Definitely. respect to 22, you don't need to worry that much at this stage. बस regularly पढ़ लो. Again, conceptual चीजें हमेशा up to date रखो, और जो theoretical है उस पे अभी it's okay if you don't focus that much on it, but don't let it slip. वो important चीज है. हम लोग काफी बार यही सोच के हाथ से छूटने देते. Then it's again an uphill climb if you do that. Don't do that either. At least mnemonics वगैरह बना लो. It will be हाँ, helpful. वो अभी से बना लो, वो अभी से बना लो. वो बाद में नहीं बनेंगे. वो पढ़ते वक्त ही करो जो भी होगा. Correct. But क्योंकि there was one very aspiring student, एक ने पूछा है कि what should a person do in 9th standard to start studying for NEET? So I don't know if you had वैसे ambitions तभी, but for somebody who wants to do it. 9th standard not really. तुम यार 10th का पढ़ो, 9th में मत करो बस. That's all. 9th में मत करो. Which is true. But I think जो अभी सुन रहे हो, you can keep it in your mind so that बाद में when you have to implement it, you are on a fast track mode. Yeah, maybe they can do that, but 9th अभी prepare करने का मत सोचो बिल्कुल. Correct, correct. Then now I go to the exam specific. So one was how to make notes for last minute revisions. तुम जहाँ जहाँ पे गलत जा रहे हो, जैसे मैंने क्या किया था कि आई हैड एक्चुअली क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स व्हिच आई यूज्ड टू गो रॉन्ग इन. तो लास्ट 1 वीक में मैं स्ट्रेस करके वही सब पढ़ा था मेनली. जैसे देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स, कोई तो केमिस्ट्री के चैप्टर में वो एवरीडे लाइफ करके था, तो उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो वो सब मैंने नोट करके रखा था. और भी टॉपिक्स थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट एक शीट ऑफ पेपर पे मैंने लिस्ट बना था तीनों सब्जेक्ट्स का. तो वो लास्ट 1 या 2 वीक्स में, मुझे क्लियरली अभी याद भी नहीं है, बट दैट वाज व्हाट आई स्ट्रेस्ड ऑन अ लॉट टुवर्ड्स द एंड. तो मैं वीक टॉपिक्स पे थ्रू आउट फोकस किया था, तो दैट इज व्हाट एक्चुअली हेल्प मी. कि मुझे पता था कि मैं जो जा रहा हूँ, मेरे जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज करके जा रहा हूँ. तो whatever there is, I'll be able to deal with the paper. So एक बार you before you just studying एक बार रुक के analyze where you are, what you're going wrong, and then so that वो last में helpful होगा. और लास्ट में तुम जहाँ पे गलत जा रहे हो वही पढ़ना है, और सब तो कर नहीं सकते हो. Correct. I know vast है, तो not everything you can study on the last day. But test series का क्या? You had said कि ये test series है, वो है. But how should somebody look at test series in the last 3 months? लास्ट 3 months में तुम टेस्ट सीरीज दे सकते हो. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो टोटली उसका मतलब है या नहीं है, इज इट यूजफुल और नो. बट यू नीड टू गिव अ फ्यू पेपर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग इज, कि तुम्हें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तुम अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं. बट एज सच तुम पेपर्स पे अकेले पे रिलाई करोगे वो भी गलत रहेगा. और पेपर्स में तुम एक्चुअली देखो कि क्या चीजें एनसीईआरटी से पूछी है. दैट इज व्हाट यू गोना मार्क योरसेल्फ आउट ऑफ. अभी सपोज कोई क्वेश्चन बाहर कर तुम्हें नहीं आया, तो रादर देन क्रिएटिंग अ फस आउट ऑफ इट, जस्ट लेट इट गो. बट अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से और तुम्हें नहीं आ रहा है, या तो तुम गलत मार्क कर रहे हो, नहीं आ रहा है, मैं फिर भी एक बार बोल दूंगा कि चलो फाइन, ह्यूमन है. बट if you're marking it wrong despite knowing the answer, then that is ridiculous. So paper writing तुम्हारा जो है, that is only to minimize those kinds of errors rather than actually
learn more and more stuff. मतलब तुम्हें actually खुद को identify करना है उसके थ्रू. वैसे कुछ था AIR ने कितने पेपर लिखे थे to get to that? मैं बहुत लिखे थे और मुझे अभी उसका कोई फायदा दिखा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. Okay. So I think just to practice once is enough. देखने के लिए कि how you are Yeah, writing it. yeah, yeah, yeah. Okay. Because जैसे you mentioned आके भी गलत लिखना. There was a question which was asking कि how did you deal with negative marking in the paper? What should you do to avoid making such mistake कि negative marking का उल्टा इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, वो तो तुम्हें खुद को कंडीशन करना पड़ेगा कि मैं आज जो आएगा वो तो गलत करने ही नहीं वाला हूँ. That's up to your psychology actually कि you have to think in that way. Be confident. तुम जितना सोचोगे कि मैं गलत कर दूंगा, I make silly mistake, think in that way you're going to make those things. So प्राइमरी चीज बिलीफ ही है कि तुम क्या सोचते हो वो होने वाला है. If you think you're going to do wonderful, that's what is going to happen, provided you work for it. But if you're nervous, तो वो भी reality में translate होगा. That is my point. Yeah, I mean, मतलब keeping that fear of negative marking in mind, did you like say कि मुझे जो आता है उतना ही मैं मार्क करके आया या एक दो तुक्के भी मारे थे? I think. मतलब मैं एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए ऐसा एक चीज सोचा था, क्योंकि हमारे पहले का जो बैच था उनमें 600 पे मुंबई मिल गया था. और तो आई हैड दिस थॉट प्रोसेस इन माय माइंड कि a 600 out of 720 is when you're leaving 30 questions and getting the rest of the questions right, because each question is for 4 marks. तो अभी leaving 30 questions out of 180 questions is leaving one question out of 6. तो मेरा जो सिचुएशन था उतना बुरा तो था ही नहीं कि मुझे 6 में से एक क्वेश्चन नहीं आएगा. इट्स नॉट रियली दैट हार्ड. तो तुम अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचोगे कि 600 लाना बड़ी चीज है या नहीं, तो नहीं है. तुम्हें 6 में से एक क्वेश्चन नहीं आता है, दैट इज व्हेन यू विल ड्रॉप टू 600. Correct. और ऐसा एक एनालिसिस कर लो. This actually was very helpful. मतलब जिसको वो 700 का fear है, 600 is also a good score. You can also get a good या mark. वो 700 तो honestly that's like something that's not totally in our hands. I got lucky. You definitely did study. Luck was a factor. But luck was one factor. How did you manage your time? Because people Oh, were asking exam में, how did you yeah. manage your time schedule? So मेरा एक हैबिट था, मैं 2.5 hours में पेपर कंप्लीट करने का गोल रखता था, क्योंकि मैं हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाता था कि देयर माइट बी क्वेश्चंस जो टफ रहेगा, जो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं आएगा, जो मैं छोड़ दूंगा. आई लव टू रीविजिट द पेपर, correct everything, check it again, and then complete all the markings. And then there also might be time which the management might take off कि पेपर लेट मिला मुझे, या तो any unforeseen thing happens कि एंट्री लेट दिया, whatever it is. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ एन आवर का मार्जिन रख के जाना इज एडवाइसेबल. तो तुम अभी जब प्रैक्टिस करो 2.5 hours में करो, तो उसमें भी यू कैन ट्राई गिविंग 50 minutes for physics, 50 minutes for chemistry. That leaves you with like another 50 minutes जो बायो पे तुम स्पेंड कर सकते हो. तो ऐसे कुछ रहता है कि per minute कितना questions होना चाहिए? जैसे बायोलॉजी में तुम जितना स्पीड अप कर सकते हो, ऑप्टिमल स्पीड पे तुम जितना फास्ट जा सकते हो विदाउट गोइंग रॉन्ग, इट्स दैट गुड. क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें कैलकुलेट करना है, तुम्हें नेचुरली ज्यादा टाइम लगेगा. केमिस्ट्री ऑल्सो माइट इन्वॉल्व रिएक्शंस एंड कैलकुलेशंस व्हिच माइट टेक स्लाइटली मोर अमाउंट ऑफ टाइम. तो या दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक कि, एंड अगेन इट्स अप टू यू. तुम्हें अगर बायो में टाइम लग रहा है, फिजिक्स जल्दी कर पा रहे हो, तो वैसे डिवाइड करो. दिस इज लाइक अ जेनेरिक थिंग, जो प्रिंसिपल है जो तुम्हें सोचना है. For which to take first is always an individual call. मतलब वो खुद नो को. नो 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 नो, तुम्हें टाइम डिवाइडिंग तुम्हारे ऊपर है, बट पहले हमेशा बायोलॉजी करो, क्योंकि वो थियरी है, या तो आता है या नहीं आता है, छोड़ दो बाद में. फिजिक्स में क्या रहता है कि तुम्हें आने का चांसेस है, तो योर माइंड माइट गेट स्टक अप ऑन दैट क्वेश्चन, इसलिए पहले Okay. बायो. पहले bio. Noted. So, but I think ये must be for everybody who's studying अभी COVID में. How to regain your interest in study? How to मतलब वो momentum कैसे रखूं?
वो थोड़ा तुम्हें जो दिन में पसंद है चीजें उस पर टाइम दे दिया करो। जैसे जैसे सपोज यूर इंटरेस्टेड इन मे बी गोइंग आउट फॉर अ वॉक, तुम्हें रिफ्रेश होना है, वॉट एवर यू लाइक डूइंग, तुम्हें घर पे सब एक्टिविटीज करना है, जैसे यू वांट टू वर्क आउट एट होम, डू दैट। देन यू वांट टू मीट अ फ्यू फ्रेंड्स, डू दैट। बट अगेन तुम लास्ट 3 वीक में एटलीस्ट लोगों से जितना मिलना बंद करोगे उतना बेटर है, क्योंकि वी डोंट वांट कोविड एट अ टाइम व्हेन वी रियली नीड ऑल ऑफ आवर एनर्जी। करेक्ट। तो या जस्ट रिफ्रेश योरसेल्फ कि तुम्हें पसंद है, कुछ भी पसंद हो सकता है अभी। बट स्क्रीन रिलेटेड जितना ना हो उतना बेटर है, क्योंकि दैट एक्चुअली ड्रेन्स योर माइंड। तो तुम्हें फटीग इंड्यूस करता है वो, एंड दैट इफेक्टिवली मेक्स यू मोर एग्जॉस्टेड एंड मेक्स यू हेट स्टडीज इवन मोर। True, but I think that's why one person was also asking how to deal with that, depression or anxiety when your marks are going down day by day, how to stay focused. ओके, सो यू हैव टू मेक अ स्टार्ट कि बेसिकली कहाँ पे जा रहे हैं ज्यादातर मार्क्स, वो आइडेंटिफाई करो। मार्क्स कम हो रहे हैं, दैट इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव थिंग दैट यू आर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि दैट इज जस्ट एन आउटकम। सो यू कांट रियली चेंज द आउटकम टिल यू नो द रूट कॉज ऑफ इट, राइट? सो वेर यू लूजिंग मार्क्स इन पर्टिकुलर, तुम्हारे अप्रोच में क्या चेंज तुम्हें करना चाहिए। जैसे इफ यू नो दैट यू डूइंग समथिंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर, देन यू हैव टू चेंज दैट। इफ यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग रॉन्ग, देन सी एनालाइज योर पेपर, उसको टाइम दो, एक एक दो दो घंटा बैठो, क्योंकि अपेरेंटली तुम जो भी करो वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इवन फर्दर। तो दैट्स ऑल, अपना अप्रोच बदलने का ट्राई करो। जहाँ पे गलत जा रहे हो वो पहले कवर करो, तो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आना चालू होगा। ऐसे 3 3 4 4 मार्क्स से आ सकता है पर पेपर, एक एक दो दो मार्क्स से आ सकता है। मे बी फॉल भी हो बट फिर वापस इंप्रूव हो, वैसा भी हो सकता है। तो बट जस्ट मार्क्स एक मेजर है, तुम क्या कर सकते हो, मार्क्स मत देखो अपना, बस एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से कौन से गलत जा रहे हैं वो देखो। डोंट कैलकुलेट योर मार्क्स, यू कैन डू दैट। Yeah, because there is one person who has stress, so I think that person wants to know how to handle stress. It makes me forget even the things I'm actually confident about. अगेन मैं जो नीट में चीज बोला था कि 6 में से एक क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा, स्टिल यू गोइंग टू स्कोर अ 600। तो Correct. व्हाट मेक्स यू वरी सो मच? जस्ट तुम्हें जो भूल रहे हो उसका टेंशन मत लो, बट जो नहीं आता है, जो आता है और वो गलत कर रहे हो उसके बारे में ज्यादा सोचो। कि मतलब मैंने तो बेसिकली वही किया था कि नीट में दी ओनली थिंग आई थॉट ऑफ वाज, नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा, बट जो आ रहा है वो गलत नहीं करूंगा मैं। तो दैट्स ऑल। मतलब तुम पेपर लिख रहे हो, सपोज एक काम करो, तुम्हें पेपर्स नहीं पसंद है तो एमसीक्यू बुक्स ही कर लो, अरिहंत जैसे है। फिर फिजिक्स के लिए मार्वल है, यूएसएस है, एमटीजी है केमिस्ट्री के लिए, डू दोज, उसमें 45 क्वेश्चंस कर लो जितने पेपर में होते हैं। और तुम्हें वो आ रहे हैं और यू आर एबल टू डू इट करेक्टली, दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस। और यू नो एग्जैक्टली कि तुम किस तरह की मिस्टेक्स भी करे जा रहे हो। पेपर से भी वो पता चलता है, बट मे बी पेपर्स हम लोग मार्क्स के फॉर्म में देखने लगते हैं, इसलिए वो पर्पस डिफीट हो जाता है। ये क्लियर माइंडसेट एक्चुअली आई थिंक सबको ही रिक्वायर था कि 1 out of 6 नहीं आया तो भी यू आर इन अ गुड पोजिशन। यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू फर्स्ट फोकस कि जो आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है। बट एक आई नो यू आर आईसीएसई, पर एक का क्वेश्चन था कि इफ आई स्टडी फ्रॉम स्टेट बोर्ड इंस्टेड ऑफ सीबीएसई, क्या इफेक्ट होगा ऑन माय प्रेपरेशन फॉर नीट? um, तुम स्टेट बोर्ड मतलब, मैं एक्चुअली क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं कि इफ स्टेट दैट बोर्ड पर्सन इन द इज फ्रॉम सेंस एसएससी। एसएससी। मतलब एसएससी तो आई थिंक 10th तक होता है। इफ यू आर करेक्ट। रेफरिंग टू एचएससी, तो जो एचएससी का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होता है वो नीट के लिए इफेक्टिव नहीं है, तुम्हें एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। और और टॉकिंग ऑफ एचएससी में, एचएससी बोर्ड्स के लिए अलग चीज है और नीट इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑन द होल। तो वो एक चीज नहीं है। इवन आई वाज इन एचएससी, बट दैट टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर नीट। काफी चीजें दोनों में अलग है जो तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। मतलब वो इंफीरियर या ऐसा कुछ नहीं है कि बिकॉज यू डिड नहीं नहीं नहीं, दैट पोर्शन यू बट can't do this? इट्स नॉट रियली इंफीरियर, बट नीट डजंट एक्सेप्ट इट।
The topics are a bit different. The content is a bit different. Okay. Now I think major of the questions that everybody had asked are covered. So I'll take the live questions. If I have missed something, you can always put it in the chat box, okay? So one person is asking for physics, chemistry. I'm doing self preparation, books for it. Physics में तुम USS में मार्वल कर सकते हो. And if you want to do more beyond that, तुम्हें अच्छे से जम रहा है, easy लग रहा है सब, तो there is DC पांडे है, BM शर्मा है Cengage का. I think that's all you need to do. फिर फिर chemistry के लिए physical chemistry और organic के लिए I think the NEET guide alone में उतना ही किया था. और इनऑर्गेनिक के लिए खाली एनसीईआरटी पढ़ना है, दैट्स ऑल. बाकी तुम्हें फिर अगर ज्यादा करना है तो काफी बुक्स है, तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे. तुम 3 साल 4 साल बैठ जाओ सॉल्व करते, नहीं होगा. तो ऐसे तो कुछ है नहीं. एंड नाउ सिंस उनको टाइम मिला है और मिल सकता है, शुड दे बी टेकिंग अप न्यू पब्लिकेशंस, या जो किया है दे शुड बी डूइंग इट अगेन? अभी फिलहाल तो हमें 3 महीने पकड़ के चलना है. तो अभी के लिए तो नए बुक्स ना करे तो अच्छा है. तुम जो तुमने पहले सॉल्व किया उसमें कहाँ पे गलत गए हो, तुम्हारे जो पेपर्स रहे होगे जो तुमने लिखे अभी तक, और चैप्टर वाइज हो या सिंगल चैप्टर भी हो या यूनिट वाइज हो, बट उसमें मिस्टेक्स पे ज्यादा स्ट्रेस करो और वो टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस दो, rather than doing an altogether new book, क्योंकि each book is similar to the other in 75% of the aspects. तो 1/4 रिटर्न के लिए इतना टाइम देना वर्थ नहीं होगा ये स्टेज पे. ट्रू, वेरी ट्रू. एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट है एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस? वो एनसीईआरटी में जो भी चीज है वो मतलब that is the standard, you have to do it, that's all. उसमें मैं और कुछ नहीं कहूँगा, वो करना ही है. So वो है ही, मतलब you can't bypass it. Yeah. But how to manage 11th revision along with 12th syllabus? ये काफी लोगों का क्वेश्चन है. हाँ वही ना, कि तुम्हें 11th और 12th को अलग तरह से नहीं देखना है, तुम्हें सब्जेक्ट वाइज देखना है पहले तो. कि 11th और 12th अभी तुम एक ही बुक समझो, बस 2 अलग वॉल्यूम समझो उसके. और यू टू डिवाइड इट इन द फॉर्म फिजिक्स, केम एंड बायो. और मैं जैसे बोला था पहले कि अभी फिजिक्स रैप अप करो, साथ में केम को भी करो, और फिर बायो धीरे धीरे. तो दैट्स ऑल. वो 11th और 12th को तुम अलग एंटिटी की तरह देखोगे तो वो ज्यादा बर्डन लगेगा कि 2 साल का करना है. नहीं, तुम्हें 3 सब्जेक्ट करना है. True. वैसे देखो तो whatever I said is relevant to that only. Okay. एक साथ देखो. So don't treat it as 11 separate, 12 separate, because it's equally important. Yeah. Okay. I have a fear that I'll forget in the paper. Please help. Again मैं जैसा कहा था कि तुम वैसा सोचोगे तो होने का चांसेस ज्यादा है. मत सोचो ऐसे पहले तो. जस्ट थिंक दैट यूर आउट देयर टू विन. बेसिकली हम लोग ऐसा एनालॉजी से देखते थे कि बेसिकली बैटल में जा रहे हो और जीत के ही आने वाले हैं. तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट इन दैट वे कि पहले तो गेट अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट इट कि यस आई हैव स्टडीड हार्ड, आई वर्क हार्ड फॉर 2 years. एंड ज्यादा से ज्यादा टफ पेपर होगा तो सभी को प्रॉब्लम होगा, इजी पेपर होगा तो तुम्हें क्यों नहीं आएगा. और तुम्हें जो नहीं आ रहे भूल रहे हो ठीक है, बट जो याद है वो गलत मत करो. अपने आप ही तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे इन द सेंस तुम्हारा जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो रियलाइज होगा राधे. True. So I think she will listen to that. But Shreyansh, please mention the book's name. I think काफी बार बोला है, and I'm pretty sure you must have written it. How important is 11th? Again, covered. It is pretty important. Amna is asking about biodiversity and conservation. बायोडाइवर्सिटी वो चैप्टर एग्जैक्टली क्या था? आई थिंक दैट वाज द वन विद स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो इफ इट वाज दैट देन वो लर्न करो, और क्या वो वर्ड टू वर्ड करना है. But I think she wants to know maybe how important is it and ऐसा कोई डिवीजन है ही नहीं ना एनटीए की तरफ से कि ये चैप्टर से इतना पूछेंगे, इतना नहीं पूछे. तुम इफेक्टिवली छोड़ तो नहीं सकते हो अनलेस इमरजेंसी हो. तो इंटेंशन तो वही है कि सब चैप्टर्स इक्वली अच्छे से कवर करना. okay, best publication to study biology, I think covered.
You said at least 5 books for each subject. Can you tell which books, and did No, your no. classes provide any books? No, you don't have to do 5 books. मैं बोला कि मैंने फिजिक्स के लिए 5 किया था बिकॉज मुझे I सब्जेक्ट पसंद था. यू डोंट हैव टू डू 5 बुक्स. नो वे. तुम पागल हो जाओगे. बट तुम्हें क्या करना है कि एटलीस्ट कोई स्टैंडर्ड बुक तो एक तो स्टैंडर्ड बुक एट द एंड ऑफ 11th एंड 12th खत्म हो जाना चाहिए. जैसे मैं काफी बार बोल चुका हूँ यूएसएस मार्वल है. इधर वन ऑफ देम फिनिश इट ऑफ. आई डोंट थिंक उससे ज्यादा नेसेसरी है बट तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो. ऑलवेज बेटर. तो प्यार है सब्जेक्ट का इज वन थिंग, बट इज इट नेसेसिटी? ऐसा नहीं है. ऐसा जरूरी तो नहीं है वो. Definitely. He had a sigh of relief. But otherwise, did your classes provide any books specifically? या दे गिव अस मटेरियल्स. केमिस्ट्री में हम लोग को असाइनमेंट बुक्स देते थे. Okay. और आई थिंक फिजिक्स में भी असाइनमेंट बुक्स देते थे. तो वी यूज्ड टू डू दैट टू. तो मैं इसलिए बोला ना कि दैट इज प्रॉब्ली आई कैन कंसिडर दैट एज वन सेपरेट बुक दैट आई हैव डन. बट वो होमवर्क होता था तो हमें करना पड़ता था. But how to get more confident in mechanics portion? हाँ, मैकेनिक्स तुम्हें करना पड़ेगा. वो यू विल हैव टू वर्क ऑन इट. रीड करो एनसीईआरटी से. ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस. थोड़े जो तुम्हें चैलेंज करे वो सब करो क्वेश्चन. ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग अ होल्ड ऑफ इट. डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू गिव टू इट. तो वाइजली डिसाइड करो कि कितना टाइम उसे जस्टिस रहेगा साथ में दूसरे सब सब्जेक्ट्स को. उस हिसाब से वर्क करो. And for an exam question, एक को question है कि what was your marking technique? So like did you mark along with solving या marking at the end? Marking, some people do it along with the solving thing क्योंकि बोलते हैं कि एंड में शायद से टाइम नहीं रहेगा. बट आई थिंक माय एक्चुअल प्रिंसिपल वाज डिफरेंट. मैं ऐसे सोचता था कि मार्किंग इन बिटवीन वुड एक्चुअली ब्रेक माय फ्लो while writing the paper. So I used to prefer solving the paper entirely and then marking in the end. जो मुझे additional edge देता था कि I used to come back to a question after probably an hour or so. कि जैसे मैंने बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन किया हो फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री चेक करके फिर वापस आ रहा हूँ उस पर. तो मुझे 1 घंटा जो मिल गया है उसमें माई माइंड वुड फ्रेशन अप और रीसेट हो जाएगा. तो आई कैन एक्चुअली सी द क्वेश्चन विदाउट अ बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू. और मोर ओवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई फोकस वुड बी एंटायरली ऑन मार्किंग द आंसर्स. तो मिस मार्किंग के चांसेस काफी कम हो जाते थे. Okay. So वो individualistic होता है या this is how you would suggest somebody to? So many of my friends did it individualistically and it worked for them too. But मेरे लिए जो काम किया मैं वो अभी Yeah, that उस is it. reasons के साथ बता रहा. True. So everybody can decide their own. Yeah. But what was your morning to night schedule and time slot wise? Okay, time slot थोड़ा heavy question हो गया. इसका आंसर मेरे पास अभी तो नहीं होगा. But morning to night, I used to try to start studying by 8 o'clock in the morning. क्योंकि probably night sleep मेरे लिए बहुत important था पूरा दिन function करने के लिए. और हम लोग का कोविड की वजह से काफी एक्सटेंड हो गया था और मैं पहले से रेडी था. मई में एग्जाम होने वाला था एंड इट got postponed to September. So I was pretty much ready. So I used to probably study till 8 or 7 p.m. And then I used to do whatever I used to like. कि मैं या तो मॉम और डैड के साथ टाइम स्पेंड करवा या तो whatever I wanted to do वैसे. तो और that's all maybe. But for you guys it's going to be different because तुम पढ़ने वाले हो. तुम्हें वैसा हम लोग की तरह एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है 5 महीने का. तो what you can do is कि तुम पढ़ रहे हो तो एंड में अपने लिए थोड़ा टाइम रख देना. बट जितना हो सके उतना कवर करो. सब्जेक्टिव चीज है. तो वही एक का था कि how did you stay focused during COVID time? Because distractions होते ही है unfortunately. वो डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही है. मतलब जो मेन हम लोग का भी गियर पिकअप हुआ था इतना कोविड के बाद दैट वाज इन द लास्ट 1 मंथ ओनली. क्योंकि हम लोग सब ऑलरेडी मई में एग्जाम होने वाला वो सोच के पढ़ चुके थे. तो वी वर ऑल प्रीटी मच रेडी फॉर इट. तो आफ्टर बीइंग रेडी फॉर समथिंग एंड इट such a stressful thing and it getting prolonged for so long it's hard to keep your focus. But when the time comes तुम्हें अंदर से अपना आप होने लगेगा कि अभी मुझे पढ़ना है.
तभी फोकस अपने आप आने लगेगा. तो ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ कि दिस इज द टाइम टू स्टडी. कि Correct. वैसे तुम्हें देखना पड़ेगा क्या कर सकते हो. और सेकेंडली टाइम टेबल बनाओ, ट्राई स्टिकिंग टू इट. पहले 2 दिन शायद से प्रॉब्लम होगा, फिर वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है. So खुद को मोटिवेट करो, इसके अलावा कुछ है नहीं. टॉक टू योर फ्रेंड्स, गेट मोटिवेटेड टुगेदर एंड करना है. That's all. I think I'm going to ask you one more time, but people have been privately also messaging. So, for the benefit of everybody, Anuj, can you please repeat for all the subjects the books that you referred? Because slowly, so I think everybody can write it down. So we don't have to Okay. get to the same question. Okay. So, देखो, अगर तुम बेसिक चीज में बताता हूँ कि अगर तुम ऑलरेडी कोई बुक कर रहे हो और यूर ओके विथ इट, यूर एबल टू डू इट, यूर कंफर्टेबल विद द पर्टिकुलर बुक, तो आई डोंट थिंक मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसको कोई मतलब है. बट स्टिल फिजिक्स के लिए प्राइमरीली इधर यूएसएस और मार्वल, इधर ऑफ द टू इज फाइन. दोनों एक दूसरे जैसे ही है. केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए देयर इज दिस एमटीजी गाइड. आई थिंक दैट्स इनफ. दैट्स जितना मैंने किया था. और फिजिकल के लिए मैंने एक दिनेश करके बुक किया था और एमटीजी गाइड भी किया था, बट उतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है. और बायोलॉजी के लिए अरिहंत और शायद से डॉक्टर अली ईच चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट. Okay. So I think सबने अभी लिख लिया होगा. But there is a person asking for study strategy for class 10 students. 10th मतलब तुम अगर नीट के लिए प्रिपेयर करने की बात कर रहे हो या 10th ग्रेड के लिए? नहीं, NEET ही. For somebody who is in 10th standard right now, strategy for that. I think नीट preparing के for लिए नॉट रियली यार. तुम अभी मत करो नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट, यू विल बर्न आउट. क्योंकि एनी सिलेबस हैज अ टाइम फ्रेम दैट हैज बीन सेट फॉर इट. जिससे ज्यादा भी डेट्रीमेंटल होता है, जिससे कम भी डेट्रीमेंटल होता है. तो तुम्हें अगर जबरदस्ती 1 साल ज्यादा पढ़ना पड़े, बिकॉज इफ यू स्टडी फॉर इट राइट नाउ, तुम 11th में जाके नहीं बोल सकते कि मेरा 2 साल हो गया पढ़ के, मैं अभी बंद कर रहा हूँ. वैसा नहीं होने वाला है. तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ही. तो वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग लगेगा तुम्हें. ऐसा लगेगा कि एक ही चीज कोई बहुत हथौड़ा मार के सिर में डालने का ट्राई कर रहा है. तो मत करो अभी 10th में, वो मत करो. 10th पे फोकस कर लो अभी के लिए. How many hours to study in a day? प्रिटी सब्जेक्टिव. तुम्हारा टाइम टेबल जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से, कि कितना कवर हो रहा है उस हिसाब से, हाउ मच यू नीड टू डू. दैट्स समथिंग दैट आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे आंसर इज अ मोर अप्रोप्रिएट थिंग. पीपल कैन आंसर इट देमसेल्व्स कि मुझे कितना जरूरत है अभी करने का. I think somebody wants to know अनुज ने कितने दिन घंटे पढ़ाई की एक दिन में. हमारा काफी वेरिएबल था. तो फर्स्ट 3 मंथ्स में से फर्स्ट 2 मंथ्स में मैं ऑलमोस्ट दिन का 8-9 घंटा पढ़ता था. और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, फिर एंड में तो 12-13 घंटों तक भी चला जाता था. बट अभी इवन इन टाइम दैट यू स्टडी फॉर ना, एक क्वालिटी फैक्टर करके चीज होता है कि तुम कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हो. मैं अगर 10 घंटा बुक खोल के बैठा हो तो इट मेक्स नो सेंस. उससे अच्छा मैं 6 घंटा फोकस करके पढ़ लूँ. Correct. So that is So why it is a very subjective. question that's really tough to answer. Correct. I know, understand, but क्योंकि एक ने पूछा कि I'm studying 11 hours every day. Can I increase or is it okay? It's up to you. If you feel confident, then just go on with it. क्योंकि तुम ज्यादा करोगे, maybe you will get fed up. If you do less, then maybe you might lose your rhythm. Just try maintaining a constant thing. End में you will need to push up. Correct. अभी तो नहीं. Okay, so now I think enough or maybe more than enough. Enough. Fair enough. Depends Correct. on the person. Correct. Did you aim for 700? No. No. I told you right. मेरा खाली जो एम था पेपर लिखने गया तभी, कि मुझे जो आता है वो गलत नहीं करना है. तो that was all my aim was. in secondly कि इतना मेंटालिटी था कि जो क्वेश्चन आता है वो मैं सॉल्व करूँगा करेक्टली. So it's always better to aim for 4 out of 4 rather than 720 out of 720, right? Correct.
So, what was your lowest score in any practice test? So that they also get a comfort. आई थिंक 400 में गया होगा, 410 4.5 ऐसा कुछ रहा होगा. हाँ, ये काफी कंफर्ट दे रहा होगा फिर. So उधर से you can reach 700. हाँ, बट वो भी चीज है ना कि तुम बाद में कैसे देख रहे हो स्कोर को. मतलब ठीक है, यू कैन डेफिनेटली रीच, तुम 720 पहुंच सकते हो वहां से, 700 तो अलग चीज है. And I think 2-3 people are very inquisitive, but your score in JEE mains. My JEE main score was 98.6 percentile something. तो बट जेई मेंस के स्कोर के भरोसे मत जाओ, उधर क्या होता है वो वैसा बोलना नहीं चाहिए, बट इंजीनियरिंग वाले दे आर नॉट रियली डेडिकेटेड. तो बेसिकली मेरा मैथ्स में मैं पूरा सेक्शन ही छोड़ के आ गया था, 0 था स्कोर और 16 परसेंटाइल था. दैट मींस कि नियरली 1.5 लाख पीपल आर स्कोर्ड इन नेगेटिव. तो तुम कहाँ पे अपने आप को उधर कंपटीशन के लिए लेके जा रहे हो. Correct. So I mean, compare ही मत करो. Because एक को ये भी जानना था कि specifically in physics and chemistry, your JEE main score. वो फिजिक्स में दोनों में शायद से 99 परसेंटाइल था. बट मैं अगेन बोला ना कि इट्स mostly up to the quality of the students that you're competing with. These exams, rather than your individual performance, it serves more like a competitive platform. So it's really more dependent कि मेरे साथ में सेम पेपर कैसे कैसे लोगों ने लिखा था. Had those people prepared or no? Evidently they did not prepare, which is why I got a good score. Correct. But you did. So somebody wants to know that did you give the Allen test series and what rank you used to get? ना आई डिडंट गिव द आइलैंड टेस्ट. मैंने 2 टेस्ट दिए थे उसके. उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक कुछ आया होगा 800 900. मतलब वो टेस्ट सीरीज में किसी आई डोंट नो, शायद से कोई तो टेस्ट में लिखा था अराउंड 40 स्टूडेंट्स ऑफ देयर्स वर गेटिंग 720 आउट ऑफ 720. तो मतलब वो शायद से उसका लेजिटिमेटी नहीं रहता वो फिर. तो मतलब देखे मतलब नहीं था. So वो जो एक Allen है, you never were behind it. नहीं. Okay. How active were you on social media, Instagram in the last few months? Last few months after NEET ended quite a lot, but उसके No, पहले शायद उससे से पहले before नहीं, NEET. उसके पहले बिल्कुल नहीं. शायद से यू वुडंट इवन लाइक, ऐसा recommended में भी नहीं आएगा तुम्हें. वैसा था मेरा अकाउंट, ऐसे पड़ा हुआ था कोई कोने में. तो 2 साल के लिए तो वैसा ही था. But तो fair enough ना, अभी यूज करने मिल रहा है and with pride. yeah, like 2 years not really, वो था ही नहीं. That was not a part of my life. Correct. Which should be the case, I think, if you're that dedicated. And that, I think, will answer many questions of does social media affect your studies? How to stay consistent in studies? एक तो social media मत देखो, and do all the motivation that Anuj told you कि खुद का analyze करो and everything. So I think I'll ask you, you can always say, you might have been eligible for AIMS. So why did you go to GI? AIMS में basically there are 101 seats, but out of them 50 seats are reserved. और मैं ओपन कैटेगरी से था, मेरा रैंक 98 था. तो दैट इज आई कुडंट गेट इनटू एम्स. और ऑनेस्टली मैं कोई कॉलेज का टारगेट रख के गया नहीं था, बट इट वुड हैव बीन ग्रेट टू बी इन एम्स, बट वो हो नहीं पाया इसलिए के ये. नेवरदलेस इट्स अ वंडरफुल कॉलेज. Yeah, because somebody is asking how is your medical college like? वो तो तुम आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा. फिर तो एकदम मेंटर वही सीनियर ही हो गए तुम. बस अभी ये स्टेज पे तुम जो कर सकते हो वो सोचो. मेडिकल कॉलेज अभी तुम थोड़ी डिसाइड कर सकते हो, मतलब इन द सेंस कर सकते हो तो यू कैन डू इट थ्रू नीट. फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव. मेडिकल कॉलेज तो सेकेंडरी है, मतलब वो तुम्हें नीट के हिसाब से मिलेगा. तो वो ऐसे कभी नहीं था कि मुझे एम्स ही चाहिए. You were first studying for NEET. या मतलब आई नेवर थॉट ऑफ एनी कॉलेज एज सच. आफ्टर द रिजल्ट एवरीथिंग कम्स इनटू योर माइंड, इधर लेना है उधर लेना है, बट उसके पहले नहीं. Okay. I think we've covered. Somebody is asking, why didn't you join MEMC?
उसमें 89 पे क्लोज हुआ, उसमें दिल्ली के लिए रिजर्वेशन होता है ना, स्टेट कोटा अगर रहता है तो थोड़ा सा पीछे था। But I think fair enough. मतलब these are very college specific questions. I think सबके लिए advice from you will be पहले नीट की पढ़ाई करो. The college follows. That's all. So guys, please, it was an amazing session. Please fill the feedback form. हमें भी help होगा. And if you have any more questions, you can always tell us. Okay. Also, there is one more whose score is 700 and her rank is 68. But It's always up to the subject. उसका bio में 360 रहेगा, क्योंकि वैसे डिवाइड होता है कि if people have scored the same, तो पहले तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है वो देखते हैं, जैसे देसी बायो फर्स्ट, देन केमिस्ट्री, तो इसलिए रहेगा. okay. So I think it was a very informative session. Sabke we could cover all the questions that people asked, and I'm hoping कि सब लोग जाके वो feedback form भर रहे हैं, because it will help us also. And if you have any more questions, you can always write to us at hello@mentofy. हम पक्का अनुज को trouble करके सारे questions वापस कराएंगे. Thank you everybody. Thank We you hope everyone. It's it was great to an have you all amazing over here. session. Thank you, Anuj. You were a big help, and I'm pretty sure. So I think before we end the session, I'd actually like to give a shout out to all of my college friends कि वो लोग ने actually message spread किया है सब जगह पे, तो it's nice. mostly even बस. और रसिका, thank you so much. Actually मुझे We पता भी were नहीं, I wouldn't grateful know to about have it. you. बहुत अच्छा लगा. It was a very informative session. And कोई भी नीट वाला होगा तो I'm going to tell them to see this. You can always go and जिसको भी अभी भी publications चाहिए, we'll be putting it on YouTube. तुम लोग pause करके अच्छे से you can listen to Anuj again anytime. Thank you everybody, and it was a great session. Thank you Anuj again. Bye everyone.